नमस्कार एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा वेबिनार स्टार्ट होने ही वाला है। वी आर गोइंग टू वेट जस्ट फॉर अ मिनट फॉर अदर्स टू जॉइन द वेबिनार। टिल देन आप सब लोग भी फ्री हो जाइए एंड इट इज अबाउट टू टेक द वेबिनार। द टाइम इज देयर, सो बाय देन you also, all of you, get free. नमस्कार एवरीवन, इट्स टाइम टू स्टार्ट द वेबिनार। सो कैसे हैं आप सब लोग? आज तो द वेदर इज ऑल्सो चेंजिंग एंड आई कैन सेंस दैट अभी होम मेकर्स को काफी टास्क होंगे बिकॉज ऑफ दिस वेदर। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू, हाउ आर यू ऑल? आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं कि आप कैसे हैं। नमस्कार प्रीति मैम, आई एम गुड एंड आई एम ग्लैड टू नो दैट यू आर फाइन। So, without delaying any further, we are going to start today's webinar, and let me share my screen. सो वेलकम पेरेंट्स वंस अगेन, आप सबका आज के वेबिनार में स्वागत है। आई एम हिमांशी शर्मा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एट यूरो इंटरनेशनल स्कूल, एंड आई एम गोइंग टू टेक योर टुडेज वेबिनार. So, without delaying further, let me introduce to you again our first futuristic school, where we believe that there is a new way of learning. And with this point of view, with this keeping in mind, I'm going to share our mission and vision of our school. So, our school's mission is to nurture every individual because we understand that every individual is unique in nature and they have their own passion. And with this, we try to prepare the individuals to grow them, their personal consciousness, to make them intellectually capable and imaginatively creative. And we believe that we are there in the society that would help the individuals to become leaders instead of taking or seeking job. We believe in people and preparing them into transformative leaders, and this is all possible because of our director sir's vision, Mr. Shivram. He's a founder and chairman of Euro International School, and he's a dedicated educator, a renowned parenting expert, and a successful owner of Code Vidya Private Limited.
and Fanusta globally, and whatnot. He also made us proud by receiving the esteemed Rajiv Gandhi Innovation Award. And it's been 2 decades of his experience that he has dedicated to education. Now, we are going to proceed with our meditation, जो कि हर बार का हमारा रिचुअल है. आज का वेबिनार भी हम मेडिटेशन से ही स्टार्ट करने वाले हैं. So I would request all of you to sit comfortably, to close your eyes and focus on your breathing. You just have to focus कि how you are letting that air in, how that air is traveling or working in your body. Is that air cool or थोड़ी सी warm है because of the weather? I want you to focus on that air. So I'm going to play the music and all of us will sit comfortably with our eyes closed. I hope you were there with me with this meditation process. Now, I'm going to share Okay, so we are going to start with today's topic, and today's topic is board results, things not to ignore after board exams. Right? So I would like to know कि board results जो है वो आपको stress देते हैं या नहीं देते हैं? So for those who are there, can type in the chat box. I hope my voice is clear to other participants. Can our technical team let me know, is my voice clear? Okay. So कमल सर, आप एक बार अपना नेट चेक कीजिए. इट माइट बी पॉसिबल कि नेट इशू की वजह से मेरी वॉइस आप तक नहीं पहुंच पा रही है. Okay. So we are going to talk about board results and I would like to ask you कि जो बोर्ड रिजल्ट्स है वो हमारे लिए मैटर क्यों करते हैं इतना? ऑब्वियसली कि 10th बोर्ड है, 12th बोर्ड है और रिसेंटली सीबीएसई ने अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर किया है. और इस रिजल्ट डिक्लेरेशन के साथ में बहुत सारी ऐसे
मुझे चीजें भी देखने को मिली जिसमें काफी बच्चे बहुत सारे खुश थे और पेरेंट्स भी खुश थे, लेकिन साथ में कुछ ऐसे रीजंस भी थे जिसमें पेरेंट्स भी खुश नहीं थे और बच्चे भी खुश नहीं थे। एंड दिस हैपेंस बिकॉज रिजल्ट्स हैं, सबके तो परफेक्ट आने हैं नहीं। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि हमारे लिए ये बोर्ड रिजल्ट्स इतना मैटर क्यों करते हैं, ये किस रीजन से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू पुट अ पोल ओवर हियर। आप सबके सामने एक पोल प्रेजेंट होगा और उस पोल के साथ में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, और उन ऑप्शंस में से आपकी स्क्रीन पे आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है उन ऑप्शन को चूज करना है आपको, ताकि हमें पता चले कि हमारी थिंकिंग क्या है। ये हमने एक नया तरीका देखा है ताकि हम आपसे और भी बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर सके। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू पुट पोल। और जो पोल का क्वेश्चन है वो ये है कि जो बोर्ड रिजल्ट्स हैं वो हमारे लिए मैटर क्यों करते हैं। Why do results matter the most? Just give me a minute so that I can put the poll. Okay, so आपके सामने अभी पोल आने वाला है। I'm going to create the poll और उस पोल में कुछ क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके बच्चे को बोर्ड एग्जाम्स में कितने परसेंट हैं जो वो स्कोर हुए हैं। देन देर आर ऑप्शंस अबव 90%, सेकेंड ऑप्शन 80 to 90% के बीच, थर्ड ऑप्शन 70 to 80 के बीच, फोर्थ ऑप्शन 60 to 70 के बीच, एंड लास्ट ऑप्शन बिलो 70। सो आप जो भी इसमें आंसर करने वाले हैं वो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि किसने क्या आंसर किया है। सो योर privacy इज देयर, सो फील फ्री टू आंसर कि आपके बच्चे के बोर्ड एग्जाम में क्या स्कोर रहे हैं। अगर आपके बच्चे ने बोर्ड के एग्जाम नहीं दिए हैं या फिर किसी और ग्रेड के एग्जाम दिए हैं तो आप वो भी उसमें पुट कर सकते हैं कि सपोजिटली आपका बच्चा 6th ग्रेड में है और आपके बच्चे ने 6th ग्रेड के एग्जाम दिए हैं, तो आप जो भी बच्चे को स्कोर हुए हैं रिजल्ट वो इसमें पुट कर सकते हैं। एंड मुझे नहीं पता चलेगा कि किसने कौन सा आंसर दिया है, तो फील फ्री टू आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज डू यू कंसिडर अ गुड परसेंटेज। कि जो भी परसेंटेज है उनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा सही परसेंटेज है। अगेन द ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज डिड यू स्कोर व्हेन यू वर अ किड। जब आप बच्चे थे, जब आप एक छोटे बच्चे स्कूल में जाते थे, it can be your 10th examination marks that you remember, it can be your 12th examination marks that you can remember। तो आपने कितना स्कोर किया था, अबाउ 90%, 80 to 90, 70 to 80, 60 to 70 एंड बिलो 60%। आई कैन सी के रिस्पॉन्सेज आने लग गए हैं और काफी लोग जो है रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिए हैं। Fourth question is why do results matter so much? This is the fourth question और इसका मतलब ये है कि रिजल्ट इतने मैटर क्यों करते हैं हमारे लिए। पहला ऑप्शन है इट मेजर्स द चाइल्ड्स प्रोग्रेस, ये हमें हेल्प करता है बच्चे की प्रोग्रेस को जानने में। सेकेंड ऑप्शन इज इट ओपन्स डोर फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, कि रिजल्ट जो है हमारे लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज ओपन कर देता है। थर्ड इज इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ प्राइड, ये हमें प्राउड फील करवाता है। थर्ड इज इट सेट्स बेंचमार्क फॉर द सोसाइटी, कि ऑब्वियसली हम सोशल ह्यूमन बीइंग है और
हम काफी सोशल होते हैं, सोसाइटी में हमारी एक रेप्यूटेशन है, तो एक रेप्यूटेशन के बेसिस पे भी रिजल्ट नेसेसरी है। जिसको ये लगता है वो फोर्थ ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड योर चाइल्ड फील when the results were announced? How did your child feel when the results were announced? कि जब रिजल्ट्स अनाउंस करे गए थे तो आपके बच्चे को कैसा फील हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन इज हैप्पी, कि वो बहुत खुश हुए थे। सेकंड इज सैड, कि वो दुखी हुए थे। थर्ड, सैड के साथ में ही डिसअपॉइंटमेंट है कि वो निराश हुए थे। थर्ड ऑप्शन इज कि बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड लास्ट ऑप्शन इज स्ट्रेस्ड, कि उन्हें बहुत ही स्ट्रेस्ड फील हुआ था। आई होप आप सभी ने रिस्पॉन्ड किया होगा। 12 people have filled this, and the remaining ones, I would request you to fill out the poll that is in front of you. आप सबके सामने जो पोल है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उसको फटाफट फिल करें। 15 लोगों ने ये पोल फिल कर दिया है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द रिजल्ट्स विद यू ऑल। जो परसेंटेज, what percentage did your child score in exams? 43 people responded, above 90. Okay. एक इसमें क्वेश्चन ये है कि why do results matter so much? तो इसमें 60% लोगों ने बोला है कि ये हमें हेल्प करता है मेरे बच्चे की प्रोग्रेस जानने में। आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्या सिर्फ यही एक तरीका है कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस आप जान सकते हैं? इट ओपन्स डोर फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, क्या सिर्फ यही एक तरीका है कि फ्यूचर की जो बच्चे की अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके बारे में मुझे पता करना है, तो रिजल्ट ही क्या वो एक लौता तरीका है जिसकी वजह से मैं पता कर सकती हूँ? एंड थर्ड, इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ प्राइड। ओके, सो हाउ डिड योर चाइल्ड फील व्हेन द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड? 60% पीपल अग्रीड कि उनके बच्चे खुश थे। 10% पीपल ने रिस्पॉन्ड किया है कि उनके बच्चे दुखी थे, निराश थे। और एक भी पेरेंट ऐसे नहीं है जिन्होंने ये बोला हो कि मेरे बच्चे को फर्क नहीं पड़ा। दैट मीन्स ये चीज तो हमें दिमाग में क्लियर रखनी है कि बच्चे को रिजल्ट से फर्क पड़ता ही पड़ता है। एंड 30% पीपल रिस्पॉन्डेड कि हाँ, मेरा बच्चा स्ट्रेस्ड था। ओके, सो अब हमने ये देख लिया कि रिजल्ट्स जो है, काफी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई सोसाइटी में एक बेंचमार्क है, ये किसी ने भी टिक नहीं किया है। देन आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता कि आप, मेरे बच्चे ने 60% स्कोर करे, मैं दूसरों को क्या बताऊं? डीप इनसाइड यू, जस्ट थिंक ऑफ दिस, कि आपके बच्चे ने 60% स्कोर करे हैं, तो क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि मैं सोसाइटी में क्या बताऊंगा, मैं इतने लोगों के साथ में उठता बैठता हूँ?
Everybody will ask me result of my kid. What will I say? Okay, so we are going to talk about the responses that we get. अंडरस्टैंडिंग इमोशनल रिएक्शन। देखो, जब रिजल्ट आता है ना, तो 1 साल का वो रिजल्ट आया है, राइट? जैसे 12th है या फिर 10th है, तो वो 1 साल की मेहनत का रिजल्ट आया है। इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ बच्चों ने बहुत मेहनत करी हो, लेकिन पॉसिबल ये भी है कि कुछ बच्चे मेहनत नहीं कर पाए हो, या फिर मेहनत करने से उन्हें कुछ ना कुछ डिफिकल्टी हो रही हो, जिसकी वजह से रिजल्ट उनका अच्छा नहीं आया है। या फिर तीसरी कैटेगरी ये भी आती है कि बच्चों ने मेहनत तो की थी, लेकिन एग्जाम में वो इतना स्ट्रेस्ड हो गए थे, या फिर कुछ एक्स वाई जी चीजों की वजह से उनका रिजल्ट अच्छा ना आया। तो सिचुएशन चाहे कोई भी हो, हमारे पास 4 इमोशनल रिएक्शंस आ सकते हैं। पहला है हैप्पीनेस एंड रिलीफ। अगर रिजल्ट बच्चे की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आया है, तो उसको खुशी महसूस होगी, वो एक रिलैक्स्ड स्टेट में रहेगा। सेकेंड इज डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस। अगर बच्चे का रिजल्ट आया है, उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया लेकिन, तो बच्चा उसमें सैड फील कर सकता है, डिसअपॉइंटेड निराश फील कर सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि बच्चे का रिजल्ट तो अच्छा आया है, लेकिन उसके पेरेंट्स खुश नहीं है उस रिजल्ट से। आई गॉट टू नो कि वन किड इज देयर, एक स्टूडेंट है जिसे 88% ट्वेल्थ बोर्ड में आए, लेकिन उसकी मदर उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आया, उसकी मदर ने सुबह से ये बोला, 88 आए हैं, 88 आए हैं, 2% और आ जाते तो 90 आ जाते, वो ज्यादा अच्छे होते। 88, बस इतने ही परसेंट आपके बनने थे। तो 88 बहुत अच्छे परसेंट है, बट द मदर वॉज नॉट हैप्पी, उसकी वजह से वो बच्चा भी खुश नहीं था फिर अपने रिजल्ट से। थर्ड इमोशनल रिएक्शन कैन बी स्ट्रेस्ड और एंशियस। कि स्ट्रेस उनको महसूस होता है, उनको एंजाइटी भी फील हो सकती है। और स्ट्रेस क्यों नहीं फील होगा? क्योंकि वो बहुत ही प्रेशराइज, हमने सोसाइटी में ही इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया है, और वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुआ है। तो अगर बच्चे को स्ट्रेस्ड फील हो रहा है, एंशियस फील हो रहा है, तो अगेन ये भी नेगेटिव इमोशन है। एंड फोर्थ वन इज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। कि बच्चे को गुस्सा भी आ सकता है अपने रिजल्ट पे, फ्रस्ट्रेटेड भी फील हो सकता है कि मैंने इतनी मेहनत करी थी, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया। या फिर कि मैं सिर्फ इतना ही परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स को मेरे से ओवर एक्सपेक्टेशंस है, उसकी वजह से भी बच्चा गुस्से का रिएक्शन या फिर फ्रस्ट्रेशन का रिएक्शन दे सकता है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि चाहे कोई भी इनमें से चारों में से इमोशनल रिएक्शन हो, मुझे क्या करना है एज ए पेरेंट? मुझे जो नीचे लिखे हुए 2 एस्पेक्ट्स हैं उन पे फोकस करना है। पहला, कि मुझे बच्चे का कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन पे ध्यान देना है। दूसरा, एक्सेप्टेंस एंड रेजिलियंस बढ़ाना है। चाहे ऊपर लिखे हुए हैप्पीनेस, रिलीफ, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इन चारों में से कोई से भी इमोशनल रिएक्शन हो, मुझे ये मेक श्योर करना है कि मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट फील करे। अगर उसके अच्छे मार्क्स आए हैं तो भी, और अगर उसके अच्छे मार्क्स या फिर उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए हैं तो भी, मेरा बच्चा मोटिवेटेड फील करे, वो एक्सेप्ट करे रियलिटी हो, और वो फ्यूचर ओरिएंटेड हो, कि वो फ्यूचर पे वर्क कर सके। देन रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होती है? हम सब में ये एक एबिलिटी होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। तो ये एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम एनी डिफिकल्ट सिचुएशन और फ्रॉम एनी थ्रेटनिंग सिचुएशन। जैसे कि एक बॉल है मेरे पास, रबर की बॉल है, अगर मैं जिस प्रेशर से उसको नीचे जमीन पे मार रही हूँ, वो उसी उतने ही प्रेशर से वो वापस उछल के ऊपर आएगी। दैट इज रेजिलियंस। और ये हम सबकी लाइफ में भी होना चाहिए, कि अगर, बिकॉज लाइफ इज अनसर्टेन और कुछ भी हो सकता है लाइफ में, राइट? तो अगर कोई थ्रेटनिंग या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन भी आती है मेरी लाइफ में, तो मैं इतनी कैपेबल बनूं कि हाँ ठीक है, अगर मैं एक बार नीचे गिरी हूँ तो मैं खुद से अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं। तो हमें चाहे इन चारों में से कोई भी रिएक्शन आए बच्चे का, हमें कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बिल्डअप करना है, एक्सेप्टेंस और रेजिलियंस बढ़ाना है। यही चीज है आज के वेबिनार की, हम इन्हीं चीज पे फोकस करने वाले हैं। और जो आज का वेबिनार है, उसमें मैं आपको ट्रिक्स एंड टूल्स बताऊंगी, जिसकी हेल्प से आप बच्चे का कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, एक एक्सेप्टेंस और रेजिलियंस वाली स्टेट जो है, वो अचीव कर सकते हैं।
और सिर्फ बच्चा नहीं, साथ में आप भी अचीव कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन, कि हमें बच्चे के साथ में कम्युनिकेशन करना है। अब हमने ये तो समझ लिया कि हमें बच्चे को कॉन्फिडेंट रखना है, मोटिवेटेड रखना है, उसको रेसिलियंट बनाना है और चीजों को एक्सेप्ट करना है, अडेप्टेबल नेचर में रखना है। और वो चीजें जरूरी भी है, क्योंकि जब वह, अब उसने स्कूलिंग पास कर ली है, जो पास्ट में जा चुका है वो जा चुका है, वेदर इट इज गुड और बैड, दोनों ही चीजें अब पास्ट हो चुकी है। लेकिन अब फ्यूचर का क्या? मेरा फ्यूचर सही नहीं होगा अगर मैं प्रेजेंट पे फोकस ना करूंगी। तो अब जो हम टेक्निक्स काम में लेने वाले हैं, वो आपको प्रेजेंट, आपको पास्ट से कनेक्ट करेगी, प्रेजेंट पे फोकस करवाएगी और फ्यूचर में गोल ओरिएंटेड बनाएगी। पहली जिसमें चीज है कि कम्युनिकेटिंग इफेक्टिव। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि एक कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव क्यों होना चाहिए? आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं कि why is it necessary to have a beautiful communication or effective communication with the kid? आप मुझे एक एक पॉइंट में बता सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा क्यों होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू वेट फॉर योर रिस्पॉन्सेज, मैं आपके रिस्पॉन्सेज का वेट करूंगी। और आपको क्यों लगता है, चाहे वो रिजल्ट्स हो या फिर कोई और रिलेशनशिप भी हो, हर बार हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। इवन अगर हम किसी स्किल की भी बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई हमारे बच्चे को अच्छा कम्युनिकेशन आना चाहिए। तो क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन? अच्छा, कितनों को ये लगता है जरूरी है? मुझे यस और नो में टाइप करके भी आप बता सकते हैं। ओके, सो एक रिस्पॉन्स आया है कि कम्युनिकेशन इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड देम एंड कन्वे आर कंसर्न। कि हाँ बिल्कुल, अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम अपनी बात भी उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे, उनकी बात भी हम नहीं समझ पाएंगे। ओके, मिस्टर आरव हैज रिस्पॉन्डेड फॉर आर गुड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो, सामने वाले की भी अच्छी हो, ताकि हम समझा सके, समझ सके। थैंक यू सो मच प्रीति मैम। ओके, टू एक्सप्रेस आर ओपिनियन इन बेस्ट वे। राइट, कि हम अपने जो ओपिनियन है, जो सोच हम रखते हैं, वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। कम्युनिकेशन ही वो एक जरिया है। ये जनरल बात होती। अब हम ये बात करते हैं कि बच्चे के साथ कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। अब देखो, अगर आपको याद हो तो हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी कि 4 तरीके के इमोशनल रिएक्शन हो सकते हैं। आई विल शो द स्लाइड टू यू अगेन। सो 4 तरीके के इमोशनल रिएक्शन हो सकते हैं। पहला हैप्पीनेस एंड रिलीफ, सेकंड डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस, थर्ड स्ट्रेस एंड एंजाइटी, एंड फोर्थ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। अब अगर मेरी बॉडी में चाहे पॉजिटिव इमोशन हो या फिर नेगेटिव इमोशन हो, मेरा माइंड तो फिल है ना उस इमोशन से। सो अगर मेरा माइंड फिल है किसी इमोशन से, तो मुझे साथ में फ्यूचर के लिए भी मेरे वर्क करना है। तो हर एक इमोशन को हैंडल करने का तरीका, अगर मैं इन इमोशंस को हैंडल ना कर पाऊं तो क्या मैं फ्यूचर में सही कर पाऊंगी? सपोजिटली मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊं, इतनी खुश कि मुझे खुद पे घमंड होने लग जाएगा। और अगर मुझे खुद पे घमंड होगा तो मैं पहले जितने एफर्ट्स नहीं डालूंगी, पहले जितनी ग्राउंडेड नहीं होंगी, और मैं पहले जैसे अच्छे रिजल्ट नहीं अचीव कर पाऊंगी। या फिर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्ट्रेस और एंजाइटी लेते हैं। तो स्ट्रेस और एंजाइटी एक ऑप्टिमल लेवल तक अच्छे होते हैं। अगर ये इस लिमिट से बाहर चले जाते हैं तो डेफिनेटली ये मेरे को नेगेटिवली इफेक्ट करने लग जाते हैं। अगर मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया तो मैं हर जगह वो फ्रस्ट्रेटेड माइंड लेके घूमती रहूंगी। एंजाइटी में मुझे बहुत ज्यादा नर्वस होगा और मैं बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। एंगर या फ्रस्ट्रेशन, चाहे इन चारों में से कोई भी इमोशन हो, हमें इन चारों को एक सही तरीके से प्रोसेस करना है, एंड कम्युनिकेशन इज दैट वे जिससे मैं प्रोसेस कर सकती हूँ। पहली चीज जो कम्युनिकेशन है, वो आपकी इमोशनल सपोर्ट बच्चे की टुवर्ड्स बढ़ा देगा। दूसरा, ये आपकी और आपके बच्चे की रिलेशनशिप को और बेहतर कर देगा। ये स्ट्रेस को घटा देगा, एंजाइटी को अगेन रिड्यूस कर देगा और सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज कर देगा। दैट मीन्स बच्चे को पहले से ज्यादा और कॉन्फिडेंट फील होगा। इससे बच्चा अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकता है, प्लस उसको हम हेल्प कर सकते हैं बेटर डिसीजन मेकिंग में।
और अगर बच्चे के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट है, दैट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि मेरे पास सामने दो चीजें हैं और उन दोनों चीजों को लेके मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मैं एक चूज नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि दोनों के अपने कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ ना कुछ नुकसान है, और एक डिलेमा चल रहा है मेरे दिमाग में कि मैं क्या चूज करूँ। तो अगर मैं चूज नहीं कर पा रही हूँ तो मैं बेटर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ में, तो वो अच्छे से चूज भी कर सकते हैं और बेटर डिसीजन मेकिंग उनको फायदा भी दे सकती है। प्लस अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने बच्चे को उसके बेटर फ्यूचर के लिए। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, और हर वेबिनार में हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो आई होप कि आप उस चीज को यूज में लेने वाले हैं। तो जो पहली चीज है जो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करेगी वो है एम्पैथेटिक लिसनिंग एंड रिस्पेक्टिंग देयर फीलिंग्स। मैंने यहाँ पे एम्पैथेटिक लिसनिंग क्यों लिखा है? एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब है हमें समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे को पहले फील कैसा हो रहा है उस रिजल्ट की वजह से। अच्छा हो रहा है, डर लग रहा है, स्ट्रेस्ड फील हो रहा है, निराश है, दुख है, गुस्सा है, जैसे फील क्या हो रहा है। और वो हम तभी समझ पाएंगे जब हम हमारे बच्चे को सुनेंगे या फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे। रिजल्ट आने के बाद में उसका बिहेवियर कहीं ऑल ऑफ सडन चेंज तो नहीं हो गया है, आपसे कहीं कट ऑफ तो नहीं कर लिया, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा तो नहीं बात कर रहे हैं। अगेन, अगर हम सुन रहे हैं हमारे बच्चे की बात को, तो ये तो हमने एक सीढ़ी को पार किया है। दूसरी सीढ़ी है कि उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना और एक्सेप्ट करना। उसको जो भी फील हो रहा है हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज मैं एक और पिन पॉइंट करना चाहूंगी कि हमें सिर्फ वही चीज को एक्सेप्ट नहीं करना जो हमारे बच्चे को फील हो रही है, हमें उस चीज को भी एक्सेप्ट करना है जो चीज हमें फील हो रही है। कि बच्चे का जो रिजल्ट आया है, मैं उससे इतनी एक्सपेक्टेशन रख क्यों रही थी, या फिर मैंने कहीं उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख ली, या फिर कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन उसे प्रेशराइज तो फील नहीं करवाती है। या फिर कि हो सकता है आपके बच्चे ने, जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिया कि 88% कम नहीं होते हैं, राइट, बट पेरेंट्स को लग रहे हैं वो कम, कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। तो इसी के साथ में सेकंड पॉइंट है कि अवॉइड नेगेटिव रिस्पॉन्सेज। हमें बच्चे को ब्लेम नहीं करना है, उसको शेम फील नहीं करवाना है, उसे एक्सेसिव प्रेशर नहीं देना है। डेफिनेटली वी डू नॉट हैव टू कंपेयर आवर चाइल्ड विद द अदर किड। हमें उसके दोस्तों के साथ में तो स्पेशली उसे कंपेयर करना ही नहीं है, चाहे कितना ही डिफरेंस हो, चाहे कम आए हो या ज्यादा आए हो, दोनों ही सेंस में हमें कंपेयर नहीं करना है। अगर ज्यादा आए हैं दोस्त के और हमारे बच्चे के कम आए हैं और हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल कि धीरे धीरे वो खुद अपने दोस्त से नफरत करने लग जाए। तो अब रिजल्ट तो आया ही नहीं था, एक उसके मन में हमने नेगेटिविटी और डाल दी। या फिर हमारे बच्चे के ज्यादा आए, उसके दोस्त के कम आए, और हम ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हैं कि उस दोस्त के साथ में नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, उसके तो बहुत कम रिजल्ट आया है। तो व्हाट आर वी डूइंग? अगेन वी आर फीलिंग नेगेटिविटी इन आवर चाइल्ड्स माइंड। लेट हिम मेक द कॉन्शियस डिसीजन। थर्ड लास्ट पॉइंट इज एक्सप्रेस अनकंडीशनल सपोर्ट। हमें बच्चे को अनकंडीशनल सपोर्ट एक्सप्रेस करना होगा। और इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि हमें बच्चे को बार बार ये रीअश्योर करना होगा कि उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है उसकी वजह से हम उसे प्यार नहीं करते, हम उससे प्यार करते हैं उसकी वजूदगी से, उसकी एग्जिस्टेंस से, ना कि उसके सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक रिजल्ट से। अगर हम सिर्फ एकेडमिक रिजल्ट, या फिर यूजुअली ये होता है कि जब भी बच्चा कुछ अच्छा अचीव करता है हम सिर्फ तभी बच्चे की तारीफ करते हैं और तभी उससे खुश होते हैं, तो हम बच्चे को खुद इनडायरेक्टली मैसेज दे देते हैं कि भाई आपकी वैल्यू तभी है जब आप कुछ अचीव कर रहे हो, वरना आपकी कोई वैल्यू नहीं है हमारी नजरों में। और जो कि रॉन्ग हो, दैट इज टोटली रॉन्ग। यू जस्ट रिमेम्बर ऑफ योर टाइम, आप अपने टाइम का याद करिए एक बार कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो, या फिर आपको कैसा लगा था जब आपका बोर्ड रिजल्ट आया था। अगेन some dilemma is there. Okay,
सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि ठीक है, हमने ये समझ लिया कि क्या क्या सिचुएशन आ सकती है रिजल्ट आने के बाद, बच्चे को कैसा फील हो सकता है। और उसमें पहली स्टेप है कि हमें कम्युनिकेट अच्छे से करना है। जब आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे ना, तो बच्चा खुद अपनी प्रॉब्लम्स आपके सामने लेके आएगा। और अगर बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स आपके सामने लेके आ रहा है ना, दैट मीन्स कि अब पहले तो सिर्फ एक जना कंफ्यूज हो रहा था प्रॉब्लम्स में, अब दो जने साथ में मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम डॉक्टर को बताते ही नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर मुझे मेडिसिन नहीं दे पाएगा, राइट? अगर डॉक्टर को मैं सिम्टम ही ना बताऊं कुछ भी, है ना, फिर डॉक्टर को एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, उसे टेस्ट रन करने पड़ेंगे, मेरे फैमिली मेंबर से पूछना पड़ेगा, या कुछ भी। तो डेफिनेटली अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो बच्चा आपके साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर करने वाला है। और उसमें पहला तरीका है टू फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में, कि एनालाइज द सिचुएशन। कि पहले हमें सिचुएशन को एनालाइज करना है कि भाई अच्छा ठीक है, कितने परसेंट आए हैं? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसकी वजह से परसेंट कम आए हैं? या फिर ये दो चीजों, दो तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक तो वो पेरेंट्स जिनके बच्चे ट्वेल्थ बोर्ड में अभी आए नहीं, और दूसरे वो पेरेंट्स जिनके ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम दिए हैं बच्चों ने। तो अगर जिसके आए नहीं है, वो तो बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं यहाँ पे। और जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, वो ये एनालाइज कर सकते हैं कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मेरे बच्चे की स्ट्रेंथ में काउंट होती है। और अगर वो स्ट्रेंथ में काउंट हो रही है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली मैं उस पर और वर्क कर सकती हूँ, और मेरा बच्चा कुछ अच्छा अचीव कर सकता है, राइट? नाउ वी हैव टू एनालाइज हियर कि सिचुएशन क्या है। मुझे सारे उसमें देखने पड़ेंगे कि क्या अच्छाई है, क्या कमी है। और कमी मैं इसलिए नहीं देख रही हूँ कि मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगी आगे। कमी मैं इसमें देख रही हूँ कि क्या मैं इस पे काम कर सकती हूँ। और अगर कर सकती हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप, डेवलप अ प्लान। स्मार्ट गोल्स बनाने हैं, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, जो मैं एक टाइम के साथ में जिन्हें देख सकूं, कंपेयर कर सकूं। डेडलाइन होनी चाहिए उसमें, रियलिस्टिक होने चाहिए नेचर। अगर मेरे बच्चे का कैलिबर है 60% का, और वो एक्सपेक्ट एकदम 90 का कर लूं, सो वो गोल अचीवेबल नहीं है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में। हाँ, ग्रेजुअली 2-3 साल में इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन एकदम से एक्सेप्ट करना, नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अगेन, अगर बच्चे ने ट्वेल्थ कर ली है, और मुझे ये देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में उसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसके अकॉर्डिंग और फिर मैं उसकी स्ट्रेंथ या वीकनेस पे वर्क कर सकती हूँ। देन नेक्स्ट इज टीच हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटेजीज। अभी जो मैंने ये एनालाइज द सिचुएशन और डेवलपिंग ए प्लान की बात करी है, इसको मैं आगे भी स्लाइड्स में कवर करने वाली हूँ। अभी मैं आपको ये एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैंने बताया है कि आपको इस तरीके से आप कर सकते हो। इस स्लाइड में, अब जो ये स्लाइड है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे फोकस करवाऊंगी, बिकॉज ऐसा इवन वर्क प्लेस पे हम लोग भी फील करते हैं। इवन आप भी अगर वर्किंग होंगे, तो आपने भी कभी फील किया होगा कि अगर हम यहाँ से थके हुए हैं, अगर हम माइंड से थके हुए हैं, तो फिजिकल थकावट ज्यादा महसूस होती है। और अगर हम फिजिकली थके हुए हैं ना, लेकिन माइंड से एकदम फ्रेश है, तो फिर एक मोटिवेशन आता है अंदर से कि हाँ चलो, एक ही काम तो बचा है, ये भी कर लेते हैं, राइट? दिस हैपेंस, है ना? सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें साथ में ये ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे की मेंटल हेल्थ को तो हम इफेक्ट नहीं कर रहे। और अगर मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हम आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपको हेल्प करेंगी ईज आउट करने में मेंटल हेल्थ। First is mindfulness and relaxation technique. Even our director sir also promotes meditational techniques कि आप मेडिटेशन करें, खुद करें, अपने बच्चे को भी करवाएं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूजुअली आप यूट्यूब पे जैसे ही सर्च करेंगे, ब्रीदिंग टेक्निक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। एक टेक्निक मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, जो आप सेकंड वाले पिक्चर यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसमें 3 इंडिविजुअल्स बैठे हैं। एक हाथ उनकी चेस्ट पे है और एक हाथ उनके टमी पे। और यहाँ पे हमें आंखें बंद करनी है, और फिर हमारी ब्रीथिंग पे ध्यान देना है कि ब्रीथिंग हमारी बॉडी में कैसे ट्रेवल कर रही है। अगेन, जो ब्रीथिंग है वो स्लो ब्रीथिंग है, डीप ब्रीथिंग है। इसके अलावा आप स्क्वायर ब्रीथिंग कर सकते हैं,
5 4 3 2 1 कर सकते हैं। इवन यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ योर पाम, कि जैसे कि इफ आई गो दिस साइड सो आई ब्रीद इन, ऐसे जैसे मैं नीचे जाऊंगी आई ब्रीद आउट, अगेन आई विल ब्रीद इन, अगेन आई विल ब्रीद आउट, जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ ब्रीद इन ब्रीद आउट। सो दीज आर फ्यू ऑफ द रिलैक्सेशन टेक्निक जो कि आप काम में ले सकते हैं। और इवन रिलैक्सेशन म्यूजिक भी आपको यूट्यूब पे बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर बहुत ही बिगिनर हो आप, आपको मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो मेडिटेशनल म्यूजिक है यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, आप उनको चलाइए और बस सिर्फ और सिर्फ कोशिश करिए कि आप उस म्यूजिक पे ध्यान दे रहे हैं। उस म्यूजिक के साथ में सेकंड स्टेप ये होगा, जब आप म्यूजिक पे ध्यान देना सीख जाए तो उसको आप अपनी ब्रीथिंग के साथ में कनेक्ट कर लें। नाउ अनदर थिंग इज कि अगर किसी को बिल्कुल ही नहीं होता है मेडिटेशन, ऑल्दो आई वुड सजेस्ट कि आप ट्राई करें मेडिटेशन, लेकिन अगर किसी को मेडिटेशन बिल्कुल ही कैपेबल नहीं है वो करने को, और उनके लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, तो दे कैन गो फॉर फिजिकल एक्टिविटी, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होती है हमारा जो स्ट्रेस है उसको रिलीव करने में, हमारे मूड को हैप्पी बनाने में। Then next is model positive behavior. So we have to model positive behavior to our kids. कि no matter what the result is, अगर हम जैसा माहौल घर में रखने वाले हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करने वाला है. So we have to take care of that as well. So now we are going to focus कि अब तो रिजल्ट आ चुका है तो एक्शन प्लान हमें कैसे बनाना है. उसमें पहली चीज आती है करियर असेसमेंट टूल. अगर बच्चा 10th में है या फिर 12th का एग्जाम दिया है या फिर छोटी ग्रेड्स में भी है, इवन अगर वो छोटी ग्रेड्स में है, लाइक लोअर बिलो 10th, तो आप बच्चे को एक्सप्लोर करने दो. उसे जितनी, काफी पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि मैम मेरे बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो एक जगह नहीं टिक पाता है, ये अलग अलग जगह इसका इंटरेस्ट रहता है, और मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता होने लग गई है कि ये करेगा क्या फ्यूचर में. सो लेट योर चाइल्ड एक्सप्लोर द थिंग्स. जब तक वो टेस्ट नहीं करेगा सारी चीजों का, उसे पता नहीं चलेगा कि उसे पसंद क्या आ रहा है. देन सेकेंड थिंग इज कि अगर वो 10th और 12th के आसपास है, तो उसे करियर असेसमेंट टूल के लिए आप इनिशिएट कर सकते हैं. इवन ये असेसमेंट टूल अपने स्कूल में भी, यूरो इंटरनेशनल स्कूल में भी अवेलेबल है. आप बिल्कुल स्कूल आ सकते हैं, दैट इज एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट. इसका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है. और आप बच्चे का ये असेसमेंट करवा सकते हैं, उसका इंटरेस्ट जान सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी जान सकते हैं, एंड इसी इंटरेस्ट और पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उसके बेटर करियर चॉइसेस जान सकते हैं, या फिर 11th 12th में कौन सा सब्जेक्ट उन्हें चूज करना है वो जान सकते हैं. देन कम्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्निकल चीजों की भी हेल्प में लेनी पड़ेगी कि आपको रिसर्च करनी है. पहले के टाइम पे रिसर्च का तरीका क्या होता था कि पहले के टाइम पे नेट तो था नहीं, तो जो नेटवर्किंग बनती थी लोगों के थ्रू, कांटेक्ट बनते थे, उसके थ्रू अपन सारे काम करते थे. चाहे वो कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, चाहे किसी की शादी करनी हो, या फिर कुछ भी करना, है ना. कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना था, किसी से रास्ते पूछने थे, तो भी हम लोगों से ही पूछते थे रास्ते. क्यों? क्योंकि पहले नेट अवेलेबल नहीं था. अब हमारे पास नेट अवेलेबल है, और एजुकेशन के रिगार्डिंग तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें. सो वी हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च. पहला, हम रिसर्च में ये देख सकते हैं कि क्या ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं जो भी मेरे बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस मैंने फाइंड करे, उससे अलाइन करते हुए मुझे कोई लर्निंग ऑनलाइन चीजें दिख रही है क्या. अगर आप टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड हैं तो आप अपने बच्चे की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कम्युनिकेशन अच्छा कर लिया, वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, तो आप दोनों साथ में बैठ के ऑब्वियसली एक्शन प्लान पे भी वर्क कर सकते हो, अगर आपने ये दोनों स्टेप अच्छे से कर लिए तो. सो फर्स्ट इज ऑनलाइन लर्निंग, के क्या ऐसे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि मेरे बच्चे के लिए हेल्पफुल होंगे. सेकंड, गैप ईयर प्रोग्राम्स. बहुत सारे गैप ईयर प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि मेरा बच्चा ऑप्ट कर सकता है. सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं, आईटी सेक्टर्स में भी इवन सर्टिफिकेट कोर्सेज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. एंड थर्ड इज अप्रेंटिसशिप्स. इसमें ये क्या होता है कि बच्चे को पढ़ाई भी करी जाती है और साथ साथ में उसे काम भी करवाया जाता है. आर्टिकलशिप भी बोलते हैं इसे, काइंड ऑफ इंटर्नशिप होती है ये, है ना. तो उसमें बच्चे को साथ में सर्टिफिकेट कोर्सेज भी मिलते हैं, और बच्चे को साथ में इन हैंड एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं.
तो मुझे ये देखना है कि ये चार चीजें मुझे मिल सकती है या नहीं मिल सकती। ये नॉन कन्वेंशनल करियर पाथ के लिए भी जरूरी है। अगर हमें कन्वेंशनल करियर पाथ में जाना है तो हमें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि पहले तो मुझे ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट देगा, क्योंकि अभी तो 12th के बाद सीयूईटी आ चुका है। लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो सीयूईटी को एक्सेप्ट नहीं करती है, और सीयूईटी के तो एग्जाम्स भी अभी चल ही रहे हैं, 21st को भी एग्जाम है, टिल 21st the एग्जाम्स आर देयर। तो सीयूईटी का तो एक तरीका था, हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपनी खुद की एंट्रेंस टेस्ट अभी भी लेती हैं, सीयूईटी के अंडर फॉल नहीं करती है। तो क्या मेरा बच्चे के पास जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है उससे रिलेटेड जो कोर्स है वो उसमें अवेलेबल है। और ये स्ट्रेंथ वीकनेसेस पता करनी है। अगर फिर भी आपको डिफिकल्टी हो रही है कोर्स पता करने में तो आप स्कूल आइए, और स्कूल आइए, हम आपकी हेल्प करेंगे ये डिस्कस करने में कि क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। थर्ड इज सेकेंड इज डेट ऑफ द एग्जाम, कि एग्जाम की डेट क्या है। अब हर एंट्रेंस टेस्ट है, यूनिवर्सिटी का अलग अलग, उनके अलग अपने एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं। लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। अच्छा, कोई एंट्रेंस टेस्ट है भी या नहीं भी है, किसी में सीधा इंटरव्यू होता है। जैसे सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई है, उसमें ग्रेजुएशन के लिए अपना एक अलग एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो उसकी क्या डेट है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है, और फिर आप एनालाइज करिए कि बच्चे के पास कितना टाइम है उस चीज के लिए प्रिपेयर करने में। तो दीज आर अ फ्यू ऑफ द थिंग्स जो कि आपको हेल्प कर सकती है एक एक्शन प्लान बनाने में। हमारा मोटिव ये है कि हम बच्चे को जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट रखें, और हम प्रमोट करें कि बच्चा एक क्यूरियस नेचर का बने, क्योंकि अगर बच्चा क्यूरियस है तो उसके एकेडमिक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी कोई ना कोई स्किल तो डेवलप करेगा ही करेगा। प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, हमें क्या करना है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ानी है। हमें उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें बच्चा अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछती हूँ कि अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो कहाँ जाना चाहिए, बच्चा एक सिटी बताएगा। अच्छा, उस सिटी में क्यों जाना चाहिए, वहां पे क्या घूमने लायक क्या है, तो फिर वो खुद बताएगा क्या क्या चीजें। और जाए तो जाए कैसे वहां पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को ऑप्शन दे रहे हैं कि वो अपना दिमाग लगाए वहां पे और चीजें फाइंड करे। और वो ओपन है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ या ना में उसका जवाब देना है। जिस क्वेश्चन का हाँ या ना में जवाब देना होता है वो होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और जिसमें एकदम फ्री तरीके से आंसर देना होता है वो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन ही पूछने हैं बच्चे से, ताकि वो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े। नेक्स्ट इज प्रमोट अडेप्टेबिलिटी, कि बच्चा अगर अडेप्टेबल है नेचर में तो उसको बहुत जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती है किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट करने। तो ये हम खुद ही मॉडल कर सकते हैं। अगर हम बहुत रिजिड है हमारी एनवायरनमेंट से, फॉर एग्जांपल अगर मुझे अ, अपनी टेबल एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए, मतलब चाहिए, नो इफ नो बट, तो जो बच्चा है उसकी भी वही दिमाग में जाएगी कि मुझे सारे टाइम अपनी टेबल क्लीन ही चाहिए। अब कोई उसकी टेबल पे कुछ अपना सामान भी रख देगा तो भी वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। अगर उसकी कोई चीज काम में ले लेगा तो भी वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो अगर हम खुद रिजिड है हमारे बिहेवियर से तो बच्चे में वो रिजिडिटी हम ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर उसे परेशानी होती है छोटी छोटी चीजों में। थर्ड इज, सॉरी, एक चीज मैं इसमें ये बोलना चाहूंगी कि अगर बच्चे को इन छोटी छोटी चीजों से परेशानी होती है तो उसका दिमाग वहीं रुक जाता है, वो उन चीजों से परेशान होने लग जाता है, और फिर अपने माइंड को जहाँ पे वो इफेक्टिवली काम में ले सकता है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसीलिए हमें उसको इतना रिजिड नहीं बनाना है, अडेप्टेबल बनाना है नेचर में। थर्ड इज नॉर्मलाइज सेटबैक्स एंड मिस्टेक्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने दो तीन बच्चों से बात की है अभी, उनके पेरेंट्स ने मेरे से बात की थी और वो मुझे बोल रहे थे कि मैम मेरा बच्चा सीयूईटी नहीं देना चाहता, उसे लगता है उसका सीयूईटी में होगा नहीं। और बस इस रीजन से कि फियर ऑफ फेलियर अंदर पैदा हो गया है, उस रीजन की वजह से वो बच्चा सीयूईटी नहीं दे रहा, बल्कि उसके बहुत अच्छे 90+ उसने स्कोर करे हैं। तो हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, हमें खुद के एग्जाम्पल देने हैं बच्चे को, बिकॉज अभी ऐसा तो हम परफेक्ट तो है नहीं कि हम कभी फेल हुए नहीं है। तो हमें बच्चे को अपने एग्जाम्पल्स देने हैं और उसे रियलाइज कराना है कि इट इज नॉर्मल, बिकॉज दिस इज लाइफ, और लाइफ में ऐसी चीजें आ सकती है। थर्ड, प्रेज एफर्ट्स एंड जस्ट रिजल्ट्स, नॉट जस्ट रिजल्ट्स।
कि हमें बच्चे के एफर्ट्स को प्रेज करना है, सिर्फ उसके रिजल्ट को ही प्रेज नहीं करना है। हमें उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाना है, क्यूरियस नेचर का बनाना है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और अगेन वी कैन डू सच स्टफ विद having effective communication. So this was all about today's session and I would request कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप वो पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। अगर if you would like to speak and if you would like to share something, so you can raise your hand and उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको अनम्यूट कर सकते हैं। And then we can. So this is the time for question and answer. I would request you to ask the questions in chat box. Okay. So I do not think कि आज के कोई questions होंगे। Still अगर आपको कोई question हो, कोई भी query हो, तो आप हमें जो QR कोड आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उसको स्कैन कर सकते हैं, पेरेंटिंग विद यूरो कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज वहां ड्रॉप कर सकते हैं और आप स्कूल विजिट कर सकते हैं। और आपको अगर अपने बच्चे का करियर असेसमेंट करवाना है, टूल्स यूज करवाने हैं, सो विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। You can scan the QR code. Also, I would request our technical team to drop the link of this community channel in the chat box. आपकी चैट बॉक्स में एक लिंक भी ड्रॉप हो चुका है जिसकी हेल्प से आप इस व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम सारे मटेरियल्स ड्रॉप करते हैं जो भी हम वेबिनार्स में लेते हैं, जो भी लर्निंग है कोई नई या फिर कुछ ऐसी वीडियो हमें लगती है कि आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगी। सो वी ऑल्सो ड्रॉप सच स्टफ इन द कम्युनिटी लिंक। यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक और आप वो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। सो आई होप कि आपको आज का वेबिनार किसी न किसी एस्पेक्ट में हेल्प करे एंड आई रियली होप टू सी यू गाइज अगेन वेरी सून, दैट इज द कमिंग संडे। और हम आने वाले संडे में फिर से मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम कि आज अगेन संडे है, वेदर भी काफी चेंज हो चुका है, आंधी बारिश एंड एवरीथिंग इज देयर। तो स्टिल आप लोग आए और आप लोगों ने ये वेबिनार अटेंड किया, सो इट रियली मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस। इट नॉट ओनली मीन्स टू मी बट मेरे पीछे भी बहुत टीम है जो कि काम कर रही है, जो कि इस कैमरे में आपको फेस दिखते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे फेसेस हैं जो कि वर्क कर रहे हैं। सो फ्रॉम देयर साइड एज वेल, थैंक यू सो मच एंड वी रियली विश यू ऑल द ग्रेट एंड बेस्ट regards to you. We will meet on the coming Sunday. Thank you so much.